Hello students, so today I am going to start the new article of indefinite integral. Okay, before starting the new article, just recall the previous video lecture. In previous video lecture, we have completed 21 examples on some special type of integrals. So there are 7 some special type of integrals and we have taken already 3 examples of each. So that becomes 21 example on the previous lecture. So here, what is the some special type of integrals? There are 7 formulae. We recall orally, that is the first is 1 upon a square plus x square dx is equal to 1 by tan inverse x by a plus c. What was the second? 1 upon x square minus a square dx is equal to 1 by 2a log of x minus a upon x plus a plus c. The third formula was integral 1 upon a square minus x square dx is equal to 1 by 2a log of a plus x upon a minus x plus c. Right? The fourth was integral 1 upon under root a square minus x square dx is equal to sine inverse x by a plus c. Formula number 5th, that was the 1 upon under root x square plus a square dx, that is log of x plus under root x square plus a square plus c. The 6th was integral 1 upon under root x square minus a square dx is equal to log of x plus under root x square minus a square plus c. And the last was integral 1 upon x under root x square minus a square dx is equal to 1 by sec inverse of x by a plus c. So this is all about standard integrals or some special type of integrals, right? So here the remaining topic completely depends on this 7 formula. Means every examples we have to apply this formula for every examples. Okay, so today I am going to start the new type of integral. So that is the integral of the type देखो अभी कौन सा नया टाइप है ये. न्यूमरेटर में 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म, एनी कांस्टेंट टर्म x square plus bx plus c. We are very familiar with this equation. This is a quadratic equation. Numerator constant term 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 but constant term, and denominator में quadratic equation. और one more time there, integral 1 upon under root ax square plus bx plus c. ये दोनों सेम है, यहाँ पर रूट नहीं, यहाँ पर रूट है, लेकिन रूट में कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट? दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. ये टर्म होना जरूरी है, दैट बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ये टाइप में एग्जाम्पल आ गया तो उसको सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है. सो दैट स्टेप्स आर, सो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फॉलो द स्टेप फर्स्ट. सो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल में हमने एक कंडीशन देखे थे कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी. जो 7 फॉर्मूले थे, 7 इंटीग्रल्स, दैट इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ईच फार्मूला हैज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी. बट सेम, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अगर ये फॉर्म में एग्जांपल है तो हमें क्या करना है? पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी करना है. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. मेक द कोएफिशिएंट of x square as unity. And second step, for getting perfect square, add and subtract. That is the half coefficient of x whole square. Means coefficient of x क्या होता है? b होता है. उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर करना है. मीन्स b by 2 का स्क्वायर कितना होता है? b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर. एड एंड सब्सट्रैक्ट b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. नहीं तो सिर्फ और ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और 1 by 2 कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट कितना होता है? b होता है, उसका सिर्फ होल स्क्वायर करना है. राइट, दिस और दिस टू बी सेम, ये दोनों स्टेप फॉलो करना है.
इफ वी फॉलो दिस 2 स्टेप्स देन यू विल गेट द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। और जो 7 फॉर्मूला है उसमें से अप्रोप्रिएट फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सो चेक इट आइदर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही चेक करना है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये चेक करना है। और अगर स्क्वायर रूट में हो तो वो होगा एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो वही अप्लाई करना है, पहले ये 2 स्टेप फॉलो करना है। समझे, एक एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। एक्चुअल एग्जाम्पल बाद में लेंगे। So first of all, taking a common from the denominator because that is the coefficient of x square. So it is b by x plus c by dx. Right? ये होगी पहली step. First of all, make the coefficient of x square as unity. The second step, for getting perfect square, we have to add b square upon 4a square. यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट एंड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। सो कहाँ पर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स और कांस्टेंट टर्म की जो टर्म है, एक्स और कांस्टेंट, इस दोनों में से बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ऐड की, यहाँ पर क्या किया मैंने, सब्सट्रैक्ट की। सो इट पर्पज इज व्हाट, फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए वो हम कर रहे हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे इसको हम। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो दैट इज, इसका स्क्वायर रूट कितना है x, इसका स्क्वायर रूट कितना है b बाई 2a होल स्क्वायर। मिडल साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, सेकंड साइन यहाँ पर प्लस रहेगा। पहले टर्म का स्क्वायर रूट, दूसरे टर्म तीसरे टर्म का स्क्वायर रूट, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। नाउ ये सॉल्व करेंगे कांस्टेंट टर्म, इसका एलसीएम है 4a स्क्वायर, इसको 4a से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan inverse x by। This type of integral is more clear if we solve examples। एक दो एग्जाम्पल सॉल्व हो गए कि पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म होना जरूरी है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइदर दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना बहुत सिंपल है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, वो ये टर्म होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर की टर्म, दैट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया एग्जाम्पल। अब सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट इज व्हाट, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी, एंड सेकंड इज व्हाट, फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर वी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। वी विल टेक एग्जांपल्स। Now let us start the exercise 3.2b. This is the third exercise of the topic indefinite integral. Exercise 3.2b. So there are 17 examples. Evaluate these integrals. So first जो 6 एग्जाम्पल है आप डेफिनेटली ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ये टाइप के मैंने कल 21 एग्जाम्पल लिए हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल के फॉर्मूले उस पर डिपेंड करते हैं 6 एग्जाम्पल्स। आप ट्राई करो, आई होप, आई एम कॉन्फिडेंट आई विल गेट डेफिनेटली सोल्यूशन, दैट इज इंटीग्रल। सबका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ला लो पहले, उसके बाद फॉर्मूला अप्रोप्रिएट यूज करो, यू विल गेट द आंसर। 7 8 एंड 9 टेम्पररी स्किप करता हूँ, आई विल ट्राई फ्रॉम द नंबर 10। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 7 8 9 इसके बाद मैं लेता हूँ। सो पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 से। सो दिस इज 1/, क्वाड्रेटिक फॉर्म 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। जो मैं यहाँ पे जो टाइप मैंने आपको पढ़ाया, 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 1/रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो टाइप के एग्जाम्पल को कहाँ से स्टार्ट हो रहे, 10 नंबर से स्टार्ट हो रहे। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 10। I is equal to, see that, 1/x square plus 8x plus 12 dx. So here no need to apply the first step of that type, that is make the coefficient of x square as unity. Here already unity पे है, x square coefficient 1 है। So direct हम b square upon 4a square टर्म add and subtract करेंगे।
So this is B, this is A and this is C. B square 8 का स्क्वायर 4A square is 1. 64/4 is equal to 16. ये साइड रफ कैलकुलेशन करो. B square by 4A square, B square is 64 divided by 4A square is 1. 64/4 is 16. So यहाँ पर पहले ऐड करो और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करो. कहाँ ऐड करना है सब्सट्रैक्ट करना है देखो. x की टर्म और कांस्टेंट टर्म के बाद पहले ऐड किया, उसके बाद क्या किया मैंने सब्सट्रैक्ट. प्लस 16 माइनस 16. नाउ हाउ टू राइट द परफेक्ट स्क्वायर. मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में राइट करना है. सो लिसन वेरी केयरफुली. पहला टर्म का स्क्वायर रूट, तीसरा टर्म का स्क्वायर रूट और सेकंड साइन, इट इज होल स्क्वायर. द स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, द स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड टर्म और ये सेकंड नंबर का साइन. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. राइट. नाउ दिस लास्ट 12 minus 16 is minus 4. 12 minus 16 how much? Minus 4. This is equal to 1 upon x plus 4 whole square. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. कन्वर्ट इनटू होल स्क्वायर. माइनस साइन एज इट इज dx. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया. 2 स्टेप हमने फॉलो किए. पहले तो जरूरत ही नहीं थी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 ही था. अब क्या है, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है यहाँ पर? 1 upon x square minus a square. This term is the x square, x square, and this is a square. X square minus a square. This is a variable term of variable, फैक्टर है वेरिएबल का, और ये कांस्टेंट टर्म है. सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, हर बार लिखने की जरूरत नहीं. यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल को मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ. 1 upon x square minus a square. फॉर्मूला नंबर सेकंड है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? 1/2a log of x minus a divided by x plus a plus c. यहाँ पर x है, एग्जाम्पल में क्या है, x plus 4 है. सो व्हाट विल बी आंसर? 1/2a. यहाँ पर ये कितना है? 2 है. log of x plus 4 माइनस ये कितना है? 2 है. डिवाइडेड बाय x plus 4 plus 2, ये प्लस c. राइट. अब इसके बाद एक स्टेप, आखिरी स्टेप यहाँ पर कौन सी होगी? I इज इक्वल, दैट इज आंसर 1/2 2 जा व्हाट? 4. log ऑफ 4 minus 2 is plus 2, x plus 2 divided by 4 plus 2 is 6, x plus 6. This is the answer. Is it clear? Very simple. 1/4 log of x plus 2 upon x plus 6. राइट. ये प्रोसीजर है. अब और देखो एक एग्जांपल नंबर 11. 2-3 एग्जांपल केयरफुली आपने ऑब्जर्वेशन किया तो डेफिनेटली ये जो टाइप है इंटीग्रल का 100% क्लियर हो जाएगा. अभी 10 हो गया. अब 11 देखो एग्जांपल. I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 upon 1 plus x minus x स्क्वायर. अब यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करना, माइनस साइन कॉमन नहीं निकालना. जैसा क्वाड्रेटिक है वैसे उसको रहने देना. यहाँ पर पहले कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद x की टर्म है, उसके बाद x स्क्वायर की टर्म है. x स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है. सो डोंट मेक इट पॉजिटिव बाय टेकिंग माइनस साइन कॉमन. ऐसा नहीं करना, यहाँ पर ऐसा रहने दो. इसके बाद हमने इसको फर्स्ट जो स्टेप है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज यूनिटी. जरूरत नहीं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है. सो अप्लाई डायरेक्ट सेकंड स्टेप. व्हाट इज सेकंड स्टेप? दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये होता है, एक्स कोएफिशिएंट बी होता है, ये कौन सा होता है? सी. बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. ये कैलकुलेशन बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. पर्पस क्या है? व्हाट? फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट दिस फैक्टर, दैट इज व्हाट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. व्हाट इज बी स्क्वायर? 1 स्क्वायर इज 1. व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर इज 1. व्हाट इज दैट? 1/4. 1/4. सो कहाँ पर ऐड सब्सट्रैक्ट करना है? कांस्टेंट टर्म और x के बीच में. पहले ऐड करना है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है, बाकी एज इट इज. सो लिटिल प्रिकॉशंस आर देयर.
मीन्स टू अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ साइन में अगर मिस्टेक नहीं करना है तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेना है। ऐड सब्सट्रैक्ट कहाँ करना है, कांस्टेंट टर्म और एक्स के बीच में, कांस्टेंट टर्म और एक्स के बीच में पहले ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, आफ्टर दिस 1 अपॉन, दिस इज अ टर्म ऑफ कांस्टेंट, दिस इज टर्म ऑफ वेरिएबल, so 1 plus 1 by 4, 4 plus 1, 5 by 4. From these three terms we taking minus sign common, reverse करो इसको, x square minus x plus 1 by 4, x square minus x plus 1 by 4, right? This equal to 1 upon 5 by 4 एक किसका स्क्वायर है, रूट 5 by 2 का स्क्वायर है, रूट 5 by 2 स्क्वायर माइनस। हाउ टू राइट द परफेक्ट स्क्वायर, पहले का स्क्वायर रूट, तीसरे का स्क्वायर रूट, x प्लस x 1 by 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 1 by 4 का स्क्वायर रूट 1 by 2, सेकंड साइन माइनस होल स्क्वायर। कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएंगे, नो डाउट, ये नहीं कभी इसका डाउट नहीं आएगा आपको, सिर्फ 2-3 प्रिकॉशन लेना है बस। एड एंड सब्सट्रैक्ट इन बिटवीन द टर्म ऑफ कांस्टेंट एंड एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच में ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। कौन सी टर्म है वो, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है, देखो ये तो ए है कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल की टर्म है, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3rd, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 by 2a log ऑफ a plus x divided by a minus x plus c. So identification of example, then proper selection of formula. फॉर्मूला का सिलेक्शन आपको करना आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। सो आंसर इज हियर, I is equal to 1 by 2a, a is what, root 5 by 2, root 5 by 2 into log of a plus x root 5 by 2 plus x minus 1 by 2 divided by a minus x root 5 by 2 minus x minus into minus plus 1 by 2 plus c. Okay, now part of calculation, this 2 and this 2 cancel, 1 by root 5 log of 1 by root 5 log of, अब ये 2 एलसीएम में 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, रूट 5 प्लस 2x माइनस 1, रूट 5 माइनस 2x प्लस 1 प्लस c. सो वन मोर स्टेप फॉर द परफेक्ट आंसर, 1 बाय रूट 5 माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c. दिस इज द आंसर. ओके, these two examples are sufficient for this type of integral, but हमें प्रैक्टिस करना है. इज इट क्लियर? अभी तक स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल नहीं आया था, यहाँ पर साइन बाहर निकालना नहीं है, राइट? ये पहले मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. और दूसरी, कहाँ पर ऐड सब्सट्रैक्ट करना है? इन बिटवीन द टर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड एक्स. इन बिटवीन द टर्म ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड एक्स, एक एक्स की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म. Is it clear? This is the solution of example number 10 and 11. We will take immediately next. Okay, after 10 and 11, let us start the example number 13. Example number 13. I is equal to 1 upon, नहीं, example 10 11 हो गया, फिर 12 स्टार्ट करेंगे. That's 12 number. What is that? 1 upon 4x square minus 20x plus 17 dx. 4x square minus 20x plus 17. So first step, make the coefficient of x square as unity. सबको 4 से डिवाइड करो, it becomes minus 5x plus 17 by 4 dx. Okay, it becomes x square minus 5x plus 17 by 4. हर एक टर्म को 4 से डिवाइड किया, x square minus 5x plus 17 by 4. Is it clear? So after this, now for getting perfect square, we have to add and subtract b square upon 4a square.
दिस इज बी, ए बी सी। सो इसको भी देखो बी स्क्वायर कितना है, -20 का स्क्वायर कितना होता है, -20 इंटू -20, 4। ए स्क्वायर इज व्हाट, 4 इंटू 4। ये बी और ये सी। बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 5 जा 4 5 जा 25/4। इट इज अ +25/4 -25/4 +17/4 dx। ऊपर dx लिखा तो चलेगा। x की टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच में एड एंड सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए बी सी, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, नाउ आफ्टर दैट राइट द कंप्लीट स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय, so this is what, x minus 5/2 whole square, x minus 5/2 whole square, square root of x, square root of 25/4 and second sign minus। okay, डिनोमिनेटर सेम है 4, 17 में से 25 गए, कितना हुआ ये, 8 -8 dx, -8/4 दिस इक्वल टू 1/4 dx डिवाइडेड बाय x minus 5/2 होल स्क्वायर, ये 2 है, दैट इज √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर। 8/4 इज 2, 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है। ये माइनस साइन क्यों आ गया, 17 में से 25 गए तो -8 बन गया, राइट। सो नाउ आफ्टर दैट दिस इज अ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर सेकंड। दैट फॉर्मूला इज व्हाट, 1/2a। ये 1/4 एज इट इज, कैरी करो उसको एज इट इज, ये 1/4, 1/2a, ये कितना है, √2 है, log of x minus a, x minus 5/2 minus √2 divided by x minus 5/2 plus √2 plus a। आप फॉर्मूला लिखो, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2a log of x minus a upon x plus a। so this is 1/8 √2 log of 2 से मल्टीप्लाई कर, 2x minus 5 minus 2 √2, 2x minus 5 plus 2 √2 plus c। this is the answer, example number 12। okay, now let us start the example number 13। अभी 13 number, I is equal to 1/5 minus 4x minus 3x square dx। so first step is what, make the coefficient of x square as unity। so 3 कॉमन लेना है, माइनस नहीं कॉमन लेना। 1/3 सबको 3 से जोड़ करो, 5/3 4/3 माइनस x स्क्वायर, ये बन गया आपकी पहली स्टेप। आफ्टर दिस स्टेप we have to add b square upon 4a square, b square -4 का स्क्वायर कितनी, 16, 4a स्क्वायर कितना है, 9, a की वैल्यू कितनी, -3 है, b की वैल्यू कितनी, -4 है, b स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, ये 4 a स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 4 4 16, 4/9 हमें ऐड सब्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पर, ये दोनों के बीच में, 5/3 प्लस 4/9 माइनस 4/9 माइनस 4/3x माइनस x स्क्वायर dx। ऊपर dx लिखता हूँ यहाँ पर। इन दोनों के बीच में पहले ऐड करना, बाद में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सो दिस बिकम्स 1/3 dx डिवाइडेड बाय, 2-3 एग्जाम्पल फुल ऑब्जर्वेशन करना है। कैलकुलेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आता है लेकिन कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं। सो कैलकुलेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट टर्म की एडिशन, एलसीएम 9 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 प्लस 4, 15 प्लस 4, टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द रेस 3, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, बाद में एक्स की टर्म, बाद में कांस्टेंट टर्म। नाउ 15 प्लस 4 19, 19 किसका स्क्वायर है, 19 इज प्राइम नंबर, रूट 19 बाय 3 होल स्क्वायर
minus. How to write the complete square? Square root of first, square root of third, second sign plus it is whole square. Formula number third, 1 upon a square minus x square. 1 upon a square minus x square, a constant term, a variable की term. 1 by 2a log of a plus x upon a minus x. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर जब जब ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तब तो आपको फॉर्मूला लिखना है. जितना टाइम आप फॉर्मूला लिखोगे उतना ज़्यादा वो अंडरस्टैंड होगा. ओके. और एक बात, फॉर्मूला लर्न मत करो, उसको ज़्यादा अप्लाई करो. जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएगा. ओके. तो दिस इक्वल टू आई इज इक्वल टू, सो ये 1/3 जो आउटसाइड की टर्म है 1/3 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय. अब फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, राइट. तो ये स्टेप हमने लिखी थी. 1/2a, a इज व्हाट, रूट 19/3. 1/2a log of a plus x root 19/3 plus x plus 2/3 root 19/3 minus x minus 2/3 plus this 3 and this 3 cancel. ये ऊपर जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा. इट्स 1/2 root 19 log of थ्रूआउट 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 रूट 19 नहीं, इसके डिनोमिनेटर 3 है. 3 रूट 19 प्लस 3x प्लस 2 रूट 19 माइनस 3x माइनस 2 प्लस c. दिस इज आंसर. ओके. विल टेक एग्जाम्पल नंबर 14. लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 14 नाउ. अब एग्जाम्पल नंबर 14 है. 13 हो गए. 14. 1 upon under root 3x square plus 5x plus 7 dx. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, बट प्रोसीजर तो वही है. वही 2 स्टेप फॉलो करना है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x square as unity. x square plus 5/3x plus 7/3 dx. For getting perfect square we have to add and subtract b square upon 4a square in between the term of x and constant term. A b square 25, 4a square 9, 25/36 plus 25/36 minus 25/36 plus 7/3 dx. ये 1/√3 dx divided by, after that important convert into complete square, x plus 5/6 whole square. X plus 5/6 whole square. 36 is the LCM. 36 is the LCM. Minus 25 plus 84. 36 LCM है उसका. माइनस 25 36 LCM मीन्स व्हाट? इसको 36 से मल्टीप्लाई करना है. 25 आ जाएगा बिकॉज नीचे 36 है. इसको 36 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स 12 7 जा 84. राइट. 12 7 जा हाउ मच? 84. सो 84 में से कितना माइनस करना है? 25 माइनस करना है. दैट इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. स्क्वायर रूट ऑफ x plus 5/6 whole square plus 84 minus 25. 84 minus 25, ये 9, ये 5, 59. So it is a plus 59/36. Now we have to convert into complete square. So I is equal to 1 by कितना? √3 था. जैसे एग्जाम्पल नंबर कितना है? 14 है. राइट. 1 by √3 in integral dx divided by under root
x plus 5 by 6 whole square. 59 is a prime number, root 59 by 6 whole square. देखो अब फॉर्मूला कौन सा है, लिस्ट। जब तक अभी इंटीग्रेशन चालू तब तक एक साइड में एक पेज रखो 7 फार्मूले का, एक साइड में पेज रखना और फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना 1/√x² प्लस a²। अब नंबर भी याद रखना चाहिए, ये नंबर फॉर्मूला नंबर 5 है। लिस्ट में जो मैंने लिस्ट लिख के दे दो फॉर्मूला नंबर 5 है, 1/√x² प्लस a²। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, 1/√3। इसको x कहेंगे, x है, और इसको ये कहेंगे कांस्टेंट टर्म a। log ऑफ x प्लस √x² प्लस a², x² प्लस a²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, 1/√3 log ऑफ x प्लस 5 by 6 प्लस, अगर इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो डेफिनेटली ये टर्म आ जाएंगे आपको। कौन सा है वो, x² प्लस 5/3 x प्लस 7/3। ये तो नहीं लिख सकते हम बिकॉज हमने √3 कॉमन निकाला था, इसको हमने सॉल्व करके ये टर्म लाई है। सो डेफिनेटली दिस टर्म इज ऑब्वियसली दिस। ये टर्म तो नहीं लिख सकते बिकॉज हमने √3 कॉमन निकाला था। सो वी राइट हियर डायरेक्टली x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 प्लस c। This is the solution of example number 14. Okay, so after completion of example 14 we will start now 15 example number 15. Example number 15, I is equal to, what is that, 1/√x² plus 8x minus 20, 8x minus 20। ट्राई करके देखो, डेफिनेटली सबको आएगा एग्जाम्पल। ऑलरेडी x² का कोएफिशिएंट 1 है, नो नीड टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अपना वो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज यूनिटी करने की जरूरत नहीं है। b²/4a², b²/4a², 16 प्लस 16 माइनस 16 माइनस 20, दिस इज dx। ये b c होता है, a मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x², b मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c मीन्स कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज दैट टर्म, b²/4a²। ये कैलकुलेशन साइड में करना, यहाँ पर मिस्टेक मीन्स आंसर रॉन्ग। सो कंप्लीट स्क्वायर, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 36 माइनस व्हाट 36 dx डिवाइडेड बाय √x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 6, 1/√x² minus a²। what is the formula, log of x plus √x² minus a²। देखो कौन सा फॉर्मूला है, 1/√x² minus a²। √x² minus a², चेक इट, फॉर्मूला नंबर 6 है वो। log of x plus x² minus a²। अभी और एक स्टेप एक्सटेंड करेंगे, दिस इज एग्जांपल नंबर 15, log of x plus 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये इक्वेशन आएगा, x² प्लस 8x माइनस 20 का प्लस 20 माइनस 20, ओके, प्लस c। दिस इज द answer of example number 15. Okay, so after that immediately we will take example number 16. So this is example number 16. I is equal to integration 1/8 minus 3x plus 2x²। ये प्लस 2x² है, ये माइनस 3x, ये प्लस 8 है, so इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव है। 2x² माइनस 3x प्लस 8, 2x² माइनस 3x प्लस 8। सो यहाँ पर क्या करना है, पहले 2 कॉमन निकालना है, सो √2 दैट बिकम्स √2। ये जो 14 नंबर और 16 नंबर एब्सोल्युटली सेम सिमिलर टाइप के एग्जांपल है, ठीक है। फिर भी एक सॉल्व करके देता हूँ, 1/√2 1/, इंटरचेंज क्यों की, बिकॉज ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट नहीं पॉजिटिव, तो पहले लिखो इसको,
x square minus 3 by 2x plus 8 by 2 is 4. 8 by 2 is how much? 4. So this is the make the coefficient of x square as unity. 1 by root 2. For getting perfect square, add and subtract b square. This is b square 9. 4a square 4. Plus 9 by 16 minus 9 by 16 plus 4. प्लस 9 by 16 माइनस 9 by 16. कांस्टेंट टर्म और एक्स के टर्म के बीच में पहले ऐड करना है, बाद में क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है. सो इट बिकम्स 1 by root 2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 3 by 4 माइनस 3 by 4. Why minus 3 by 4? Because second sign is minus 3 by 4 whole square. After this 64 minus 9. 64 में से 9 गए, कितना आ गया? 64 में से 9 55. 55 by 16 प्लस 55 by 16. dx तो एक बार लिखा है. So 1 by root 2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x minus 3 by 4 whole square root 55 by 4 whole square. 64 में से 9 गए, 55 गए, 55 प्लस है, प्लस 55 by 16 root 55 by 4 whole square. So finally the answer is here. Which one? The formula 1 by root 2 as it is. carry करो उसको. log of root x square plus a square formula number 5 है. This is x minus 3 by 4 plus under root x minus 3 by 4 whole square plus root 55 by 4 whole square. आखिरी स्टेप 1 by root 2 log of x minus 3 by 4 प्लस अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखना है, बिकॉज रूट 2 जहाँ मैंने कॉमन निकाला है. आप इसको सॉल्व करके देखो, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये और ये. दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 3 by 2x प्लस 4 और ये प्लस सी. दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 16. ओके, सो वेरी क्लियर. सब एग्जाम्पल लिया मैंने और एक आखिरी बचा एग्जाम्पल नंबर 17. ओके, let us see the last example of this type, that is example number 17 here. Example number 17, I is equal to integral 1 upon root. He has given two factor x minus 3 x plus 2. It is just for the confusion. सिर्फ दो फैक्टर थे, इसको सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा. दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 dx. इट इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx. एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx. ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो अप्लाई द सेकंड स्टेप डायरेक्टली. b square means minus 1 का स्क्वायर 1, 4a square also 1. सो 1 by 4 पहले ऐड करो, उसके बाद सब्सट्रैक्ट, उसके बाद कांस्टेंट टर्म. ये प्रोसीजर से सॉल्व करो, डेफिनेटली मिस्टेक नहीं होंगी. थोड़ा भी गड़बड़ हो गई तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा. 2-4 टाइप है, वो आपको प्रिकॉशन लेना है. एक्स स्क्वायर की टर्म अगर इधर निगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन नहीं लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन. दूसरा प्रिकॉशन, जब भी हम इसको ए बी सी कहते हैं, इसको ए है, ये बी है, ये सी है, राइट. सो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये टर्म हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन बिटवीन. कहाँ पर? एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच में. ओके, दिस इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 by 2 होल स्क्वायर. ये माइनस 24 माइनस 1 इज माइनस 25 by 4. 6 4s are 24. Minus 24 minus 1, that becomes minus 25.
minus 25 by 4. This is equal to I is equal to integration dx divided by under root x minus 1 by 2 whole square. It is minus 5 by 2 whole square. 25 by 4 means what? 5 by 2 whole square. This minus sign as it is. Formula number 6, 1 upon under root x square minus a square. This is x and this is a. आप फॉर्मूला लिखो एवरी टाइम, मीन्स लर्न भी हो गया और मिस्टेक नहीं होगा. दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. ओके, सो दिस इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की जगह पे फैक्टर एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर plus c. So this is equal to log of x minus 1 by 2 plus under. ये सॉल्व करो, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस सी. अगर आपको और प्रॉपर लिखना है तो गिवन एग्जाम्पल लिखो जो भी है, बिकॉज इसका तो फैक्टर यही आएगा. सो इट इज एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2 plus c. This is the solution of एग्जाम्पल. ये सॉल्व करो, डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट मैंने ये फैक्टर क्यों लिखा, बिकॉज इफ पॉसिबल कन्वर्ट इनटू द एग्जाम्पल फॉर्म. तो एग्जाम्पल में फैक्टर दिए थे x माइनस 3 और x प्लस 2. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 17. 10 to 17 total 8 एग्जाम्पल थे. 8 एग्जाम्पल्स ऑन द इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो पहले 6 आप ट्राई करो, जो मैंने कल 21 एग्जाम्पल लिए थे उस पर डिपेंड है 6 एग्जाम्पल. 7, 8, 9 मैंने टेम्पररी स्किप किया है, ये मैं आपको सॉल्व करके दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. सो ओके, सो टुडे इज सफिशिएंट. वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस एक्सरसाइज 3.2b ऑन नेक्स्ट डे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.